Hello students, this is the chapter number 13 and page number 231. In the previous video we had studied about the qualifications and powers of the legislature, executive and judiciary. Today we have to study about the chief minister. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. The chief minister is the head of the state council of ministers. The chief minister is the actual lead to the executive power of the state. The leader of the majority party in the state legislative assembly is appointed as chief minister by the governor. तो चिल्ड्रन, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है और जैसे कि आपको मालूम है कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है, वही उसका लीडर ही चीफ मिनिस्टर बनता है और उसे गवर्नर अपॉइंट करते हैं. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. अब चिल्ड्रन, पावर्स एंड फंक्शंस जो हैं चीफ मिनिस्टर के, वो भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के हैं उसी तरह से स्टेट में चीफ मिनिस्टर के हैं. सो यू हैव टू रीड देम डीपली. हियर इज द पावर्स. कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट, leader of the legislative assembly and the state, link between the council of minister and the governor. Here is also given the council of ministers special features, and the council of ministers special features are collective responsibilities to decide policies of the government, legislative powers, financial powers. So you have to read them deeply. Now judiciary, the high court. As per the constitution, every state of the union has a high court. As per the 24th amendment of the constitution, the parliament, if so wishes, may set up only one high court for 2 or more states and union territories. The high court of Madhya Pradesh is situated in Jabalpur. For the convenience of the people, there are 2 benches, one in Gwalior and the other in Indore. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है. 24th अमेंडमेंट के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया. उसके अनुसार यदि कानून चाहे तो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं. हमारा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है जबलपुर में है और जनता की सुविधा के लिए ग्वालियर और इंदौर में इसकी बेंचेस को स्थापित किया गया है. बेंच मतलब खंडपीठ. Now here is given the organization of the High Court, appointment of judges, number of judges, function and pay and allowance and qualification of judges and other matters. So you have to read them deeply. There is a little bit change. जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको 65 इयर्स की एज तक वो पद पर रह सकते हैं और चाहे तो खुद रिज़ाइन दे सकते हैं उसके पहले. और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो पोस्ट पर रहने की एज है वो 62 इयर्स की है. 62 इयर्स के जब वो हो जाते हैं तब वो रिटायर हो जाते हैं. और क्वालिफिकेशन जो जजेस की है और जो मैटर्स हैं वो लगभग सुप्रीम कोर्ट के तरह ही हैं, पर सेंट्रल स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि जो हाई कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करते हैं. सो यू हैव टू रीड देम डीपली. नाउ वी विल स्टार्ट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. Students, you have to read the chapter deeply. I will give you only summary. The democracy of our country is based on this concept that the people should be able to participate in the government functioning at every level. To make administration aware about the well-being of the people and to solve the local problems of the people locally, local administration is necessary. In India, the government functioning is not limited only to central and state governments, but the local government. The local government is also based on the democratic system. The local people of a town or a village are more aware of the problems of their town or village. The function of the local government is to solve the local problems locally. For fulfillment of local economic and social needs and solving local problems, there is a need of local administration. The local government system is not uniform in rural and urban areas. In rural areas, there are village panchayats, block panchayats and district panchayats. In town areas, nagar panchayats, municipalities and municipal corporation are there.
These units of local administration work under the guidance and control of the elected representatives who are elected by the people. This arrangement of local government is known as local self-government. हमारे देश का शासन इस धारणा पर आधारित है कि शासन के हर स्तर पर जनता को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो और उन्हें न्याय मिले। इसलिए भारत की शासन प्रणाली में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्तर तक ही सीमित नहीं है हमारा शासन, बल्कि हमारा जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली पर आधारित है। किसी गांव या कोई कस्बे की समस्याओं का सबसे अच्छा ज्ञान उसी गांव या कस्बे के निवासियों को होता है और इसीलिए स्थानीय सुशासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है रूरल और अर्बन एरियाज़ में एक सा नहीं होता है। रूरल एरियाज़ में वो विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लेवल पर काम करते हैं, जबकि टाउन एरियाज़ में नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में वो काम करते हैं। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोग जिनको चुनते हैं, उनके गाइडेंस में, उनके कंट्रोल में काम करते हैं और इस तरह के अरेंजमेंट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। नाउ द पंचायती राज सिस्टम फॉर रूरल इंडिया। द पीपल ऑफ रूरल एरिया मैनेज द अफेयर्स ऑफ देयर विलेजेस थ्रू द ग्राम पंचायत। सच अरेंजमेंट इज popularly known as Panchayati Raj system. You can understood this by this flow chart: Panchayati Raj system in India, district panchayat, जनपद पंचायत, then village पंचायत। जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स को, वहाँ की जो भी समस्याएं हैं या जो भी प्रगति के कार्य हों उनको देखने के लिए ग्राम पंचायत के थ्रू लोग काम करते हैं और इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है। चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड दिस डीपली। नाउ ग्राम सभा। देयर इज अ ग्राम सभा इन एवरी ग्राम पंचायत। ऑल द वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। एट लीस्ट 2 meetings of ग्राम सभा आर ऑर्गेनाइज्ड इन एन ईयर। In the Gram Sabha, annual statement of accounts of the Panchayat budget, audit report, etc. are presented. The Gram Sabha proposes new schemes for development for the Gram Panchayat. हर गांव में एक ग्राम सभा होती है और इस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें ज़रूर होती हैं और सरपंच उस बैठक की अध्यक्षता करता है। ग्राम सभा में पंचायत की सारे वार्षिक जो भी विवरण होते हैं उनको, बजट है और रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट है, इन सब को प्रस्तुत किया जाता है और नई नई योजनाएं विकास की सजेस्ट की जाती हैं। ग्राम पंचायत। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द विलेज पंचायत। मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। द सरपंच इज ऑल्सो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द सरपंच इज कॉल्ड द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। द टेनर ऑफ द पंचायत इज फॉर 5 years। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। सरपंच भी डायरेक्टली लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और सरपंच ही फिर ग्राम पंचायत का हेड भी होता है और जो कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत का वह 5 years का होता है। एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत जो है साफ़ सफाई करवाना, सड़कें बनवाना, कुएं तालाब बनवाना, ये सारी लाइट की व्यवस्था करना, मेले वगैरह लगवाना, ये सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत ही देखती है। और लोकल के लोगों के रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, ये सारे जो वर्क होते हैं वो विलेज पंचायत को ही करने होते हैं। Children, you have to read the chapter deeply. I will give you only summary. I am giving you only summary. The Janpad Panchayat. Every district is divided into development blocks. For every development block, there is a Janpad Panchayat. The block is divided into wards and every ward has population of 5,000 so far as possible. प्रत्येक जिले को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें विकास खंड बोला जाता है। ब्लॉक्स मीन्स विकास खंड। और हर ब्लॉक के लिए एक जनपद पंचायत होती है।
ब्लॉक को फिर निर्वाचन क्षेत्रों में भी डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से इलेक्शन के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। और हर क्षेत्र में लगभग 5000 पॉपुलेशन होती है, हर वार्ड में लगभग 5000 पॉपुलेशन होती है। और ब्लॉक में जो वार्ड होते हैं उनकी संख्या 10 से लेकर 25 तक हो सकती है। There is a president and vice president of the Janpad Panchayat. The members of the Janpad Panchayat elect the president and vice president from amongst them. Now, functions of the Janpad Panchayat. Every Janpad Panchayat organize programs in the block in the sectors of integrated rural development, agriculture, social forestry, animal husbandry, etc. Let's see the district Jila Panchayat. The apex unit of local government at the district level is the district panchayat. The state government constitutes one ward on a population of nearly 50,000. The number of district panchayat can be minimum 10 and maximum 35. Seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in proportion to their population in the districts. And tenure of district panchayat is 5 years. डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होती है लोकल गवर्नमेंट की अपेक्स मीन्स सर्वोच्च यूनिट होती है, मीन्स शीर्ष इकाई होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो 50,000 पॉपुलेशन के बेस पर एक निर्वाचन क्षेत्र बनाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य को इलेक्ट किया जाता है। और जिला पंचायत के सदस्यों की जो संख्या होती है कम से कम 10 और अधिक से अधिक 35 हो सकती है। और जिला पंचायत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होता है जो कि उनकी पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है। और जो टेनर होता है, जो कार्यकाल होता है, वह डिस्ट्रिक्ट पंचायत का 5 इयर्स का होता है। फंक्शंस ऑफ द जिला पंचायत: टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द जनपद पंचायत एंड विलेज पंचायत्स, to coordinate the schemes of Janpad Panchayat, to forward to the state government demands for grant for special purpose, to implement such schemes of the district which fall in the area of 2 or more Janpad Panchayats, to advise the state government in the matters of development related activities, social forestry, family and child welfare and games and sports, to do such other work which the state government directs. तो जिला पंचायत के जो कार्य हैं वो जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों पर कंट्रोल रखना और उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और उनका जो है मार्गदर्शन करना। राज्य सरकार जो भी ऑर्डर करती है, जो भी प्लान करती है, उसको फॉलो करवाना और विशेष कुछ भी खास कार्यक्रमों में जनपद पंचायत द्वारा जो भी अनुदान की राशि मांगी जाती है, अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाना कि इस काम के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, इस विकास के लिए। विकास संबंधी कार्य करवाना, सामाजिक कार्य करवाना, परिवार कल्याण और बाल कल्याण, स्पोर्ट्स और इन सब के लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देना। ये सारे फंक्शंस, ये सारे कार्य हैं जिला पंचायत के। Children, here is the 73rd constitutional amendment given. You have to read this deeply. Now, urban administration. As per the population of 2011 census, the population of the country was 121.6 crores, out of 68.8% rural areas and 31.2% people live in the town. Local urban bodies have been created for the towns and cities. These bodies solve the problems of their area relating to water supply, health, drainage, waste management, cleanliness, lighting, etc. These local bodies are democratic. In these bodies, local citizens are elected by district election process. 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे देश की पॉपुलेशन अब 121.6 करोड़ है, जो कि अब 130 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, और जिसमें कि जो ग्रामीण जनता है वो 68.8% है और जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो 31.2% है। तो जो हमारे टाउन्स हैं और शहर हैं उनके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जो कि सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वाटर सप्लाई की हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, लाइटिंग हो, क्लीनलीनेस हो, ये सारी व्यवस्थाओं को लोकल गवर्नमेंट देखती है। और जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में
इलेक्शन प्रोसेस से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुने जाते हैं। चिल्ड्रन, हियर इज द टाइप ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज, अर्बन पंचायत और नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बच्चों आप इससे अच्छी तरह से रीड कर लेंगे कि नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरह से काम करती हैं और लोकल बॉडीज़ के फंक्शन क्या है। अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर आप डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हैं। हियर इज़ योर चैप्टर 13 फिनिश्ड एंड यू हैव टू कंप्लीट योर फेयर कॉपी up to chapter number 13. In the next video we will start chapter number 4, transport, communication and foreign trade. This is the geography part.